Two more reasons I can highlight why you shouldn't worry much about your discipline, whereas you have to, of course, focus on the courses. Is that first is philosophical. I believe that irrespective of this is my belief, irrespective of whichever discipline you are in, whichever topic you are in, you have studied science and maths topics, right? Whichever topic you are in, you must have found that if you dig deep, you will ultimately fall in love with that topic. And that's the reason if you dig, you are the second cohort who is going through this curriculum. So while at that time, you can take advices from your seniors, but your seniors in the third year and fourth year might have gone through the old curriculum. So all the advices they are giving may not be relevant to your curriculum. So please take a note of that. Now in this curriculum, you are free to take your own choices. Some choices, and there is enough flexibility. You can even select, there are many baskets, you will come across that. General engineering basket, basic sciences basket, core courses basket, even electives basket. And then there is an open category, what we call that as open courses. So that you can select according to your wish. So in all these baskets, we have given a certain kind of freedom for you to select the choices. How are you going to make the choices? Are you going to make the choice the one your friend has made, or one your senior is advising? Please don't do that. Because you have a unique flavor, you have a unique interest. What I advise you is that you talk to your faculty members, you talk to your seniors, you talk to whomever knows you. That will give you the knowledge, but the decision should always be yours, right? So make your decision, informed decisions, and then shape your curriculum. Two more things regarding this curriculum is that, how many of you have heard about the minor area? Not much, right? So IIT Delhi has the flexibility of you to choose a minor area that could be in a different discipline. As an example, if you are a student in electrical engineering, you can select a minor area in, say, engineering physics, according to your flavor. So explore that. There might be some extra courses you may have to take, and when to take those courses or which courses you have to take, that you have to decide. So that is what I am telling, shape your own academic journey. Second thing is that, how many of you have heard about advanced standing? I'm sure there are not many. Oh, there are some, I'm glad. So advanced standing in the sense that many of you have joined for BTech, right? It's a 4-year program in between, if you dig deep and fall in love with that topic or any other topic, and in between you are deciding that, I want to explore a little bit more. And so in that sense, if you are spending another year in IIT Delhi, you can get 2 degrees. One is bachelor's and the next thing is master's. And that master's degree need not to be in the very discipline you joined for bachelor's. You can explore the master's in some other discipline also. So there are a lot of flexibility allowed by the curriculum. And to add to that, in the recent curriculum, the revised curriculum, we have also mandated the AI/ML component. AI/ML is driving the show nowadays, isn't it? So the AI/ML component is kind of integrated in many of the courses, and necessarily in all the disciplines. So it is going to be quite interdisciplinary kind of learning. At the same time, again, BTech gives you the breadth, and depending upon your flavor and interest, you can dig deep and explore all these options. Got it? Okay. So this one, the information of all these things you can collect in the first year. The implementation could be in the second year, third semester onwards, when to take, which course to take extra. At the same time, so this is the first one. The second tip is that in IIT Delhi, you can learn beyond the curriculum. That is one platform where you can expand your skills. So there is something called as co-curricular, and there are so many clubs. So you may not need to add these minor courses or advanced courses, but still you can be associated with some clubs. There are around 14 or 15 clubs, and they provide the hands-on experience. We call that as co-curricular activity. So please explore that. They will be giving you a presentation during the induction week. Pay attention to that and involve in one or other clubs, maybe after or during the first year or after the first year. So in this way, you design your activities, you plan and draft your own curriculum. Along with that comes my second tip.
while you shape your curriculum, as I advise, you listen to your heart and brain and you take the lessons from, knowledge from others, advices from others, but the decision is going to be yours. Second tip is that take responsibility on your learning. Just coming to with that, whatever you are designing, it need not to be the same as your friend is going to design. You know your caliber, you know your interest, you know what is unique in you. So you have to take care of the credit requirements for your graduation, but at the same time, the journey you are going to derive, you should take the whole responsibility. And whenever you are slipping through in between due to some kind of misjudgments, we are there to help. Come to us, come to your faculty members. We have around 680 faculty members in the institute, and most of the faculty members are almost available in their offices and waiting for some or other students to come and chat with them. So we love to discuss with you. The third thing is that, third tip is that you have gone through a curriculum till your 12th. The curriculum was a little bit different. I'll explain. You may have a syllabus, you have a structured kind of exam paper, you know what is the structure of that exam paper and what questions could come. So all these things, there was some kind of determinism, isn't it? But in IIT Delhi, it is a little bit going to be in a kind of wavering. So we evaluate based on what we teach in the class. And what does that tell you? Attendance is mandatory. If you are attending all the classes, if you are listening to all the lectures, if you are interacting with the professor, then there is absolutely no reason to worry. Believe me. So we have also seen from the database, when we analyze, there is a strong correlation between the performance and the attendance percentage. So you can take my word, attendance is mandatory, and also it will keep you safe. There is nothing hard in the curriculum. Don't get overwhelmed at all. So attendance is kind of mandatory. Attend classes regularly and interact with the faculty members. Whenever you think that, I don't understand that particular lecture, stop the instructor and ask the question in a polite way. The fourth tip actually comes automatically, I believe, if you follow the first three tips, is about the academic integrity. If you are dedicated, if you follow the rules, if you attend the classes regularly, then academic integrity, according to me, comes naturally. But academic integrity is something which our institute pays a lot of attention, and we take it very serious only because of one reason, two reasons I can tell. Because you at the end of 4 or 5 years, we are quite confident that you will end up as a great engineer. You will learn so many things and you will be able to contribute to the society. But we also want to produce or launch the engineers who have ethics in their mind and also socially and environmentally responsible. So integrity comes first. And if you go through the learning outcomes of your own program, you will see that integrity is there, professional ethics is there in the learning outcome. So it's an outcome we expect from your program. And also the second reason is that, if the integrity is diluted, it will affect our academic reputation across the world. And who is going to be impacted by that? The students. The first impact will be on the students, their employability and everything. Just a hint, keep a hold of academic integrity, don't allow it to dilute. So that for that you have to be dedicated. And so the last one, the fifth tip is that many of you have raised when Professor Banerjee asked that, are you the first time going out of the going to stay out of the home? That means that you are going to spend the next 4 years here along with your friends. So who is going to be your family? You are. We have around 13,000 students in IIT Delhi, and among that I think 9,000 or 8,000 or someone or so stay in the campus. So you are going to take care of yourself for sure. While taking care of yourself, you have a duty to take care of your friends also. Some of them may get overwhelmed with the curriculum. Some of them may get, they might be missing their parents. But you have to make sure to take care of them also along with you. And if you find anything amiss, please come back and report to us. We are there anyway to help. So these are the 5 tips you can remember. At the end, there is a kind of a philosophy you can follow, but that depends on you.
Many times while attending the counseling sessions and also when talking to the students, in the initiative itself, you guys seem to be worried about, after these 5 years, where am I going to be? Where am I going to get placed? Or what is the career I would have? How many of you started worrying about that? No one? Maybe your parents are worrying about that. Right. But there is absolutely nothing to worry about that. If you follow all this dedication, you will end up well. But at the same time, instead of worrying about that, instead of asking that question, where will I end up or what career I would have, I would request you to reorient that question a little bit. And this is a philosophy. Reorient the question in a way that, what problem I am going to solve? By studying all these things, I will end up in a career, but then what problem I am going to solve? By solving that problem, whom all I am going to benefit? Who in the society is going to benefit? So what I'm highlighting is that, put the service mentality at the top priority. When you put the service to the society, the service to the country at the top priority, rather putting yourself at the top, you will understand what is going to happen. It will automatically reduce your stress level. Even if you are unable to serve, you will get another chance to serve. So in that way, ultimately, you are getting double benefit. You are, of course, putting service at the first and also reducing your stress levels. So this is the philosophy I adopt, and maybe you can try on that. With this, I will wind up. We will always be there to help and discuss with you. We'll be so happy to interact with you. There are so many interaction sections in this 5-day induction period. And I wish you all the success, accomplishment, at the same time, a happy and satisfying life with IIT. Thank you. अभी रूम एक क्या कर रहे हैं, कैंपस टूर करा रहे हैं सीनियर्स। मतलब बस एक लाइन बना के पूरा घुमाएंगे, हम ही घूमेंगे मतलब, बट डायरेक्शन दे रहे हैं वो। कुछ दिख तो नहीं रहा ठीक से वैसे। या लेफ्ट साइड में बैठे थे, राइट साइड अपन बैठे थे। बाइक लेकर था, जो मैं देख रहा हूँ तुम देख रहे हो। स्टॉक क्यों हो गए? रीजन क्योंकि ये बायोटेक डिपार्टमेंट के सामने, पूरा बायोटेक डिपार्टमेंट, ठीक है। कैंपस टूर शुरू करते और सबसे जरूरी सिक्योरिटी ऑफिस ही है, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम। तुम लोगों को मैं तो सबसे बात करती वो तो जो मिल जाता है। आई डोंट थिंक अबाउट अंदर छुपा देगा फिर। अपने अपनी लाइन में चलना है यार, जो ट्रैफिक में मैनेज करना है अपने को। वॉलीबॉल की परमिशन हमेशा से रखा हूँ बस, और माली को भी यहाँ पे हमेशा हवा चलती रहती है। वेट, सही में कैसे?
कंटिन्यूस हवा चल रही है यहाँ पे, नेचुरल हवा, वो भी नॉट एसी। दिख नहीं रहा लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लिखा है। अरे कहाँ हो तुम भाई, हम लोग एकदम लाइन के मतलब हाँ ठंडी ठंडी हवा। हम लोग एकदम आगे चलाएंगे, अगर आना होगा एकदम ही फ़ोटो में नहीं दिख रहा होगा लेकिन बढ़िया है। यार पास आ जाओ सारे। ओए अब चाहे बहुत सारी लाइन बना लो, ऐसे मल्टीपल पास हो जाओ, तो सर्कल भी बना लो, सेमी सर्कल। हमारी आवाज आए यार सबको, झुंड पास हो जाओ सारे। अब जिसको बैठना है बैठ जाओ, बैठना है तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। बैठना। पानी चाहिए तो उसमें मिलता है, ले आना। अगर पढ़ने वाली है तुम्हें, क्या ट्रेनिंग होगी क्या? बैठ जाओ, मेरे को ज्यादा चिल्लाना ना पड़े। अरे बाप रे, वैसे ही सर दर्द हो रहा है मेरा। ठीक है भाई, समझ गए। ओए पास बैठो यार, इतनी दूर क्यों जा रहे हो? ऐसे पास आओ ना, थोड़ी पास आओ। अरे इधर भी जाओ ना, इधर क्यों नहीं जा रहे? यहाँ जाओ, देखो यहाँ जाओ, ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ बैठ जाओ। पास बैठना सारे। तुम लग रहे हैं ना, बैठे तुम लग रहे हैं। इसमें बहुत रूल आ जाते हैं। गाइस इस ग्राउंड का नाम क्या है, किसी को पता है? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मित्तल है इसका नाम। बेसिकली ये इधर का सबसे बड़ा ग्राउंड है। इधर इंटर आईआईटी की टीम्स भी खेलती है, तुम भी खेलोगे अगर अच्छा खेलोगे तो। और नहीं खेलोगे तो भी खेल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वो भगा देते हैं। हाँ उनके टाइम पे भगा देते हैं, कभी कभी उनकी प्रैक्टिस होती है तब नहीं जब खेलने देंगे प्रैक्टिस तुम होती है लोगों इंस्टी की, तब नहीं खेलने देते। ऐसे कभी भी आके खेल सकते हो उनके अलावा। को। कभी भी जब 9 भी बजे खाली तक, रहे रात को 9 बजे तक, सुबह 6 बजे आ जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में तो कोई आवाज नहीं आई होगी? रास्ते में तो आवाज नहीं सुना होगा तुम बता रहे थे, कुछ आवाज तो नहीं आई होगी? नहीं। तो ये लाइन लंबी थी इसलिए नहीं आवाज आ पाई, तो इशू है। अब यार तेरी आवाज भी नहीं है। देखो ये है ना, हम लोग अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, अभी आवाज आ रही होगी सबके पास। चलो स्टार्टिंग में जहाँ पे आईआईटी लिखा था वो मेन बिल्डिंग थी। लाइक वहाँ पे सारा प्रॉफ के ऑफिसेज है, अकाउंट सेक्शन वगैरह वही है, कंट्रोल रूम वही है। उसके बाद उसके आगे चले तो वहाँ पे ब्लॉक्स है, वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के ब्लॉक्स है, डिपार्टमेंट के सारे लैब्स वगैरह वही हैं। उसके बाद फिर लाइब्रेरी दिखी होगी बीच में, वहाँ पे वो सब एरिया है। उसके बाद फिर ये अपना मित्तल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स के लिए अंदर खेल सकते हैं। बैडमिंटन कोर्ट है, चेस वगैरह है, टेबल टेनिस है, स्क्वॉश कोर्ट भी है। अगर
कोई स्कॉश जानते हैं? कौन जानता है भाई? तुम में से यार, ये इतने लोग क्यों जानते हैं? ओए इस बार अच्छा खेलना नहीं, स्कॉश में इतने लोग जानते हैं तो। और बढ़िया फैसिलिटी है एकदम, ग्राउंड सारे बढ़िया अंदर के। खेलना भी है, खेलना है इधर पढ़ाई कम कर देना थोड़ी, ठीक है? यहाँ एफजीसी होगी तुम्हारी 1 महीने बाद। हाँ, एफजीसी पता है किसी को? हाँ, पता है। चलो भाई, सबको एफजीसी किसको नहीं पता है? हाथ उठाओ। नहीं पता। और जीसी किसको हाँ, नहीं पता। जीसी किसको नहीं पता? क्या? जीसी सबको पता है। हाँ, मूवी में देखा था। नहीं पता, हाथ खड़े करें। मूवी में देखा चिचोरे था। किसने देखी है? चिचोरे सबने देखे यहाँ पे। किसको पता है जीसी और एफजीसी? को एक बंदा हाथ खड़ा करो। जीसी पता आओ है। आगे बताओ। ओके। बताएगा ना भाई। अरे आजा आ गया फिर। जल्दी जल्दी वैसे बोलते जाए। ये फेमस बन रहा है। नाम बता दे सबसे पहले अपना। अपना नाम मेरा नाम लक्ष्य सिंह। जोर से बोल, जोर से बोल। जीसी की फुल फॉर्म तो वैसे जनरल चैंपियनशिप होती है, इसमें जीसी की फुल फॉर्म जनरल चैंपियनशिप होती है। जोर से बोल यार, कोई नहीं है, सुन रहे हैं। जनरल चैंपियनशिप होती है, इसमें भाई सपोर्ट करो थोड़ा। इसमें वेरियस उसे बुलाऊंगा अगली बार मैं। इसमें वेरियस आईआईटीज खूब सारे स्पोर्ट्स में एक दूसरे से कॉम्पीट इंटरनेशनल एक दूसरे से वेरियस स्पोर्ट्स में कॉम्पीट करते हैं, और ये शायद से सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होती है ना। काइंड ऑफ मतलब वाटर स्पोर्ट्स वाले तब हो जाता है। हाँ, और इसमें सारे के सारे फ्रेशर्स पार्टिसिपेट करते जो हैं। वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो ठंड की वजह से अक्टूबर में होता है। तो जैसे जीसी होती है ना, उसमें पूरा हॉस्टल पार्टिसिपेट करता है। बैठ जा वाले जीतते हैं। कौन? आजा बाइक से आना, मैंने तेरे को ही देखा। अरे यार, जीसी होती है, उसमें पूरे हॉस्टल के सीनियर वगैरह सबकी एक टीम बनती है ना, और वो सारे इंटर हॉस्टल कंपटीशन करते हैं। एफजीसी में सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले अपनी टीम बनाएंगे और इंटर हॉस्टल कंपटीशन करेंगे। एफजीसी में तुम्हारे अगेंस्ट सीनियर्स नहीं होंगे जिनको 4 साल का तो तुमको एक्सपीरियंस पूरा है। मौका मिलेगा खेलने का, तो सीखने तुमको का, मौका ट्राई करने मिलेगा। का। और फिर अगर तुम अच्छा खेले तो तुम जीसी की टीम में खेलोगे। तो यहीं पे आके तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ क्रिकेट और ग्राउंड एफजीसी से सीनियर्स तुमको देखेंगे तुम कैसा खेलते हो। ट्रायल्स होते हैं, एफजीसी की प्रैक्टिस होती है। वीसी लेगा। हाँ, वीसी होते हैं हॉस्टल के हर के स्पोर्ट्स बाद होगा के। जब कर्फ्यू खत्म होगा। कर्फ्यू के बाद ही होती है, कर्फ्यू के बाद होगी एफजीसी तुम लोगों की। एफजीसी तुम्हारा लगभग 2 महीने बाद शुरू हाँ। होता है। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल का मैच होता है। नहीं होता। नहीं यार, तुम्हारा बहुत लोग फुटबॉल भी खेलते हैं में होता है, उसमें पैक में कुक कर देती है ये हिमाद्री। क्रिकेट ग्राउंड है, ये पैक में होता है कंपटीशन, उसमें हिमाद्री कुक कर देती है। वो क्या होता है? इसको कुक समझ नहीं आया। कोई नहीं, अभी मैं समझा। अरे फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट क्लब। अच्छा, जोकर से बनते हैं ऐसे। अबे यार, अरे पेंटिंग का क्लब होता है यार, एक अलग अलग पेंटिंग्स करते हैं। पेंटिंग तो करेगा तू। क्या? हाँ, हमारे बीएसएफ वाले बता देंगे तुम। अरे तो हॉस्टल के सीनियर खुद आएंगे, वो जानते हैं तुम एफजीसी टीम तो हॉस्टल की एक्स्ट्रा करिकुलर में ऐड होती है ये। भाई मैंने तो पहले कभी कोई स्पोर्ट्स खेला नहीं। सब सीख होता है, सकते हैं सब यहाँ होता पे? है, लॉन टेनिस, टेनिस सब, टेबल टेनिस, सारे टेनिस। सीखूंगा। सामान अगर तुम हॉस्टल से मांगो तो हाँ दे सकता है हॉस्टल तुम्हें। और हाँ, सामान की कोई टेंशन नहीं है। जो सीनियर्स के पास रहता है अभी तो उनसे तुम नहीं बात कर सकते। तो 1 महीने के बाद जब एफजीसी स्टार्ट होगा, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, तब से मिलने लगेगा। और अगर तुम इंस्टीट्यूट के लिए प्रैक्टिस करते हो तो सारा सामान इंस्टीट्यूट देगा वैसे ही। इलेक्शन स्टार्ट होते हैं कर्फ्यू के आर्म बाद। रेसलिंग का। जब तुम खेलना शुरू कर देते हैं तो तुम्हारे डीसी को लगता है कि वाइस कैप्टन हाँ कर सकते हैं। तुम मल्टीपल में गोल ला रहे हो और अच्छी बात है, हॉस्टल का नाम रोशन करोगे। और एफजीसी से सुन लो, इंटर आईटी के लिए भी कोच देखता है कि कौन से फ्रेशर्स बढ़िया खेलते हैं। कोच भी रहते हैं एफजीसी के टाइम। तो बता देता हूँ यार, स्पोर्ट्स मीट में अलग से बताएं। ठीक है, वो अलग बात है। ये बस यहाँ मतलब हाँ, ठीक है। अरे स्पॉयलर बेसिकली क्या क्या चीजें यहाँ पे वो बता रहे हैं हम लोग, बाद में ये सब आराम से बताएंगे। हाँ, लेकिन ये है ना, बाद में ये और लोग बताएंगे, हम उनका काम नहीं कर रहे हैं अभी। सॉरी यार, इतनी एनर्जी नहीं है हमें। वैसे ये ग्राउंड ओपन है सबके लिए। आपका आईडी कार्ड देखेंगे बस, ये वो भी नहीं देखेंगे। टेम्पररी आईडी कार्ड मिला होगा, हाँ। जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इंडोर स्पोर्ट्स के लिए आईडी कार्ड आप कभी भी आ सकते हो, खेल सकते हो। कोई भी स्पोर्ट्स, हॉकी ग्राउंड है उधर वाला,
नहीं, हाँ ओपन है। 10 बजे से अब पहले। ये देखो, ये ट्रैक है, इधर आके रनिंग कर सकते हो तुम। ये ग्राउंड है, इसमें कुछ और करना है तो कर लो। पिच तो नहीं खोल सकते तुम अभी, ये इस पे खेलना अलाउड नहीं है, क्रिकेट नहीं खेल सकते तुम इधर। अबे आगे बिल्डिंग बंद कर देते हैं उधर से। ये है तुम्हारा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। यहाँ के बारे में और मत पूछना यार, अभी टूर के बारे में बात के बारे में मत पूछो, स्पोर्ट्स वो बाद में कॉम्प्लेक्स के बता बारे देंगे में यार। पूछना है तो पूछो। हॉस्टल से लाओ क्या? इंडोर का मैं बता देता हूँ। इसका पास बनाना पड़ता है, 1000 रुपए का बनता है, 4 साल का। 1000 का बनता है, 1000 और मतलब 4 साल का बनता है, बस एक बार बनेगा, उसके बाद तुम कभी भी जाओगे। और वो भी 4 साल के बाद है ना, वो मिल जाएंगे तुमको 1000 रुपए वापस। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है तुम्हारा 1000 रुपीज का, वो तुम अंदर से बना देंगे तुम्हारे लिए। बात करोगे, पूछोगे, बना देंगे। ठीक है, अंदर भी बढ़िया ग्राउंड्स है, इंडोर जिम भी है अंदर। जिम यहाँ फ्री होता है क्या? हॉस्टल की तरफ चलते हैं सारे। अभी हम लोग यहाँ से सैक जाएंगे। वाटर स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पे शैक के अंदर स्विमिंग पूल है अपना। देखो अभी यहाँ से हम लोग सैक जाएंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। वहाँ पे वेरियस क्लब्स के सैक? होती है, वहाँ पे क्लब होते हैं, स्विमिंग पूल वहाँ है, जिम भी है वहाँ स्विमिंग पे, पूल है, जिम है, और छोटे मोटे ग्राउंड उधर भी है, बैडमिंटन के, टेबल टेनिस ओएटी के। है। ओएटी पता है किसी को? अटैक ऑन टाइटन। हाँ OAT है वहाँ आरटीवी पे। के प्रो नाइट्स वहीं होते हैं, तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे। प्रो नाइट मतलब सिंगर वगैरह आते हैं, तो कभी से अभी चालू कर दे तू। आजा अभी, आजा शैक चलते हैं अभी। ओए पकड़ मत करना, साथ रहना है ना। सैक चलेंगे यार मत करना एक दूसरे में यार, आवाज नहीं आएगी बाद में। रास्ते में सही से चल लेना, वहाँ पे फिर ऐसे सर्कल बनवा देंगे। वापस जिस तरफ से आए उसमें लो। का जन ये नहीं है, सात का जन उधर ब्लॉगिंग चैनल खोला है क्या? चलेंगे। सच्ची यूट्यूब पे हैं? यूट्यूब पे अच्छा ब्लॉग कह रहा है क्या? अच्छा। नहीं नहीं, ये तो बस मैं मेमोरी के लिए सेव कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब के लिए इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं अभी, इंट्रोवर्ट हूँ बहुत। कैमरे के सामने शर्म आती है, इसलिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ कि अपने आप को कॉन्फिडेंस फूल करने के लिए। हाँ यार मेरे वो नहीं हुए डॉक्यूमेंट्स कल, वो भी तो कल फिजिकल फॉर्मे का कह रहा है क्या? हाँ वो नहीं मिला मुझे। मेरे को भी नहीं मिला वो तो। मिलेगा भी सही है। मैं भी बेचारे बेगल खराब हो गया हाँ। चला के। क्या है किस ईयर के हैं? हम पता नहीं कौन सी ईयर के हूँ। लाइन बहुत लंबी हो जाएगी जेब से। आगे चलते फ्रंट में। यार मैं अभी तो हॉस्टल डिस्कवर नहीं किया हमने। हाँ हमने भी नहीं। करेंगे करेंगे। जिम जाना शुरू करूँगा मैं तो। टायर पे लॉक लगाए हम लोग। तुम्हारे मम्मा है? हाँ थोड़ा बहुत और सामान देगी मम्मी। वो किसका है? वो तुम्हारा ही है? हाँ वो टेबल। टेबल का यप। यही है ना वो अच्छा पार्टीशन करने के लिए। टेबल कह रहा है क्या? हाँ बोर्ड साइज हाँ हाँ। बड़ा साइज। अरे नहीं, वो तो बस बेड पे ऐसे खोल के रखेंगे तो उसमें मैं अपना वो रख सकता हूँ, लैपटॉप वगैरह काम करने के लिए मतलब।
वो छोटे से नहीं आते हैं बोर्ड से। हाँ, और दिख भी नहीं रहा। दूसरे लैपटॉप मैंने कहा भैया वही Lenovo का कौन सा था? लेनोवो लीजन RTX 5060। वो भी तो आ रही है GTA 6। इतना भी हार्डकोर गेमर नहीं हूँ भाई, टाइम नहीं थोड़ी इतना हमारे पास, बस पुरानी गेम्स खेलने के लिए है और कुछ मॉडर्न। टाइम तो निकाल सकते हैं स्पीच करके, और डेली थोड़ी खेलूँगा, वीकेंड्स में कह रहा हूँ मैं। हमारे में ज़्यादा आ गए। ऑलमोस्ट फ्रंट पे आ गए हम लाइन। और वो थर्ड रूममेट नाम भूल गया यार। कुलदीप। कुलदीप। हाँ वो भी अब हाँ, वो आ गया सामान लेके। हम रूम सेटल कर लेंगे, सारी चीज़ें वगैरह रख देंगे 27 से पहले, क्योंकि फिर 27 से क्लास स्टार्ट हो जाएंगे तो सब बिजी हो जाएंगे हम तो उससे पहले हम सारा सेटअप कर लेंगे। लेवल पे नहीं होंगे। नो जोक्स। वॉकिंग का पता नहीं, वो बना भी क्यों रहा हूँ, बट मेरे लिए क्या है मेमोरी। ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सके। बोल तो रहा नहीं मैं कुछ ऐसे।
सुबह सुबह जॉगिंग करने का प्लान बना है क्या? ठीक है, अब अपना फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा मेरे को। मेरे को भी। मैं जो दिमाग वाला करने लगता हूँ सुबह सुबह सारे मौसम उतना भी बुरा नहीं है जितना बोलते हैं, लाइक पॉल्यूशन वगैरह। हाँ, यहाँ पे शायद बारिश ही है, यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा है ना कंपेयर टू बाकी दिल्ली। शायद बारिश वगैरह ये इसकी वजह से भी हो सकता है। हाँ वो भी है, बट यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं कंपेयर टू बाकी की दिल्ली की जगह, हाँ, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बैलेंस्ड है। ना तो उसका वेट करा गंदोबू का वो किसका? गंदोबू क्या था गंदोबू गंदोबू? पता नहीं, गंदोबू पता नहीं। पार्टी भी पता नहीं, नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ। कल्चरल क्लास में आई चलिए। अच्छा, अरे जिसमें हाँ, हाँ। आई थिंक एशिया का फर्स्ट वो है द बिगेस्ट कल्चरल इवेंट। ओह, देखेंगे। ताइक्वांडो का भी है यहाँ पे। सेमी सर्कल। यहाँ पे आओ सेमी सर्कल बनाने हैं। हाँ भाई कभी कभार डिपॉजिट करना होता है पहले 500। हाँ तुम जाके देख सकते हो, उनका कैंपस स्कूल खत्म हो जाए तो तुम लोग चले जाओ। इधर आ जाओ, इधर सुबह कितने बजे खुलता है? इधर आ जाओ सब, इधर इधर इसके पीछे जाओ, पीछे इनके पीछे जाओ। मेक अ क्यू मैन लाइन में। इसके पीछे चले जाओ ना सब, इसके पीछे चले जाओ। यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। जरा पीछे होते जाओ, ये बीच में जाओ। ठीक है, खड़ा होना है कोई। कौन सा कितना पीछे चाहे दिख नहीं रहा कुछ। इसका सर हम कौन सा मैं संस्कार से हूँ। अरे तुम संस्कार से दिखा भी नहीं। अरे बता देंगे यार अभी कोई डाउट बातें मत करो, डाउट सब पीछे आओ, आजा भाई, ये सैक के अंदर चलेंगे। भूख लग रही है। अरे वो क्या सैक देख के जाना तो अभी बोला तो सही। कोई नहीं भैया, नो ईयर कैंपस कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। सही है, मिस आउट करके पता सब बोलेगा भाई। कोई नहीं, कल बीमार पड़ जाऊंगा, सब मिस आउट करके ना भाई कुछ दिख भी नहीं रहा ठीक से, इतने सारे लोग हैं और सारे मेरे से लंबे हैं। देखो अब तो भाई बहुत अच्छा लगता है भाई। चलो भाई, 7:30 हो रहे हैं।
आज आगे चलते हैं। देखते हैं, दिखाएंगे तो। ये सैक दिख नहीं रहा है। ये रैंप क्यों है? रैंप की तरह से। अच्छा, जिम वगैरह कॉमन जिम है। थोड़ा वैल्यू कुछ होगा थोड़ा स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स। जान तो देंगे नहीं। बैडमिंटन रूम वो भी है। अच्छा, कभी भी आ सकते हो तुम, कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। देख लिया हो जाओ। इसकी मेंबरशिप है? हाँ, मेंबरशिप। पता नहीं यार आपको भी। ओए देख लिया हो। तो ये प्रोफेशनल है या फिर हम चिल करने के लिए मेंबरशिप लेते हैं लोग? दोनों टाइप के लोग हैं ना। जैसे कि ये अपने देखता होगा ना, हाँ, वो आरसीएफ में काम करते थे, लाइक वहाँ पर भी शायद ओलंपिक वाला ही कोई जिम होता है, उसी का ही शायद। सही है। उसमें 200 रुपये लेते थे वो पूरे, आई थिंक 1 महीने के। उनका बढ़िया था। यहाँ पर तो एक्सपेंसिव। हाँ हाँ, इसलिए हम लोग आएंगे नहीं मल्टी जिम में नहीं जा सकते? क्या मल्टी जिम है यहाँ पे, वहाँ नहीं जा सकते? जा सकते हैं, बंद पड़ा है। देनी पड़ेगी शायद। ओह, टा 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 टा।
पास हो जाओ सारे। वो तो इस पर मुझे भी उठा अबे हम तीनों को डालेगा ये क्या चीज़ है? बंद होगा ना। ओए पास आ जाओ यार सारे। ये देखो ये OAT है अभी तो बंद है। OAT AOT अटैक ऑन टाइम देखा है स्विमिंग पूल कैसा लगा सबको? फ्री होनी चाहिए। वो पता कर लेना तुम लोग यहाँ पे आके सुनो। ये सब क्वेश्चन अपने बबलू से पूछना है, ठीक है? जब हॉस्टल में आप बबलू से पूछ लो या फिर खुद आके पता कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं यहाँ पे तुमको। बबलू कौन है? कौन सा हॉस्टल है? होनी चाहिए। तो यार सतपुरा। हमको अपना बबलू नहीं पता है। कौन है? लेकिन किसको किसको पता है बबलू किसको कहते हैं? यार एक का बकचोदी काट रहे हैं यार। अच्छा मतलब ही है क्या इनका? नहीं पता किसको कहते हैं? नहीं। BSW को बबलू कहते हैं एज अ स्लैंग यार ओके बबलू भैया तुम लोग को बताएंगे क्या बोलना है, चिंता मत करो, तुम्हारी मीट होगी। अभी बेसिकली जिसने भी टी शर्ट पहन रखी है वो तुम्हारा बबलू है। और वाला हमसे ऊपर है, वो हमारे बबलू है। हमारे बबलू, ठीक है? तो आप वो सब छोड़ते हैं। ये तुम्हारा पीछे ओट है। ओट इज जहाँ पे तुम्हारा बेसिकली सारा ओट इज बेसिकली ओपन स्टेज थिएटर। यहाँ पे तुम्हारे सारे परफॉर्मेंसेस होंगे, फेस्ट होंगे। जो अभी तुम्हारा RDV होगा, काफी साहब तुम देख के आओगे होगे कि RDV होता क्या है, क्या होगा। मैंने तो नहीं देखा। होगा तन्मय भट्ट आया था। तन्मय भट्ट यहाँ पे है। हाँ, वो सारे जो आएंगे वो ओट में आएंगे। ओट में ऐसा होता है कि रात में प्रो नाइट करके कुछ होता है। तो प्रो नाइट्स के टाइम ओट के थ्रू ओट पे एंट्री होगी सैक के थ्रू, उस गेट के थ्रू। तो ओट में सारी परफॉर्मेंसेस होंगी। एंड ये तुम्हारा पूरा सैक ग्राउंड है। जो अभी डांडिया सीजन आने वाला है, दिवाली आएगा, दशहरा आएगा, तो सारी डांडिया नाइट्स होंगी वो सैक ग्राउंड में होंगी। और वो भी हम BSW ही करवाएंगे। बिग डिनर भी होता है इधर। और वो यहाँ होता है तुम्हारा। बिग डिनर इज बेसिकली चांस फॉर यू एंड योर प्रोफेसर्स टू बॉन्ड। तो तुम और तुम्हारे जो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं या जो भी तुम्हारे क्लासेस के प्रोफेसर्स हैं वो आते हो और यहाँ पे डिनर करके तुम जो कोई डाउट हो पूछ सकते हो। नॉर्मली लोग सिर्फ खाना खाने आते हैं। खाना बहुत अच्छा मिलता है, खाना अच्छा मिलता है। तो खाना खाने आ जाना, उस दिन तुम्हारा मन भर जाएगा। हॉस्टल का खाना तो अपने आप मेल आ जाएगा। हाँ, हॉस्टल का खाना तो तुम्हें मन भर जाएगा। कैसा होता है अभी तो अच्छा लग रहा है भाई, ऐसा ही मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं लगेगा वो। यस नाइट मैच। हाँ वो रात को के मैच में लेते हैं। हाँ अच्छा लेट नाइट मैच। हाँ ओए चलो सब अब। ओके यहाँ से लोग बॉयज हॉस्टल की तरफ जाएंगे, बीच में आवाज सब पे नहीं पहुंचे, तुम लोग देखते हुए चलना। सारे हॉस्टल में घुस जाएंगे हम लोग। सेट के बाहर आराम से। हर हॉस्टल में नाइट मैच है, तुम लोग बाहर से देख लेना। ओ, हर कभी हॉस्टल हो में। तो रात में आके खा लेना, लेकिन कर्फ्यू के बाद, क्योंकि नाइट मैच रात में होती है। वो बता देंगे चलो आराम से चलना हो, बदल नहीं आराम से है ना, रस्ते छोटे हैं, धक्का मुक्की नहीं। ओए इधर से आ जाओ, इधर से रुको। हाँ तो उधर से ही जा रहे हैं। पीछे वालों को कह रहा हूँ गाइड कर तू कुछ गाइड नहीं कर रहा, जा दिखाना भाई कैसे है भाई। अंदर मत करियो। हाँ भाई क्या रिकॉर्ड कर रहा है भाई? ब्लॉग हैं मेमोरी रिकॉर्ड करने लायक है।